Hello everyone, my name is Sakshi. So here I will show you my 70th mains copy which I have written. This is of paper 2. So I will show you in detail that how much marks I have got in 114 marks and where did I lack. So यहाँ पे मुझे टीचर ने दिया है वेल परफॉर्म्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चंस क्या क्या है और मैंने आंसर्स क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप इन बिहार, जो कि 7 मार्क्स के लिए है। So you can see here, the agricultural roadmap is an initiative of the government of Bihar. It demonstrates the commitment to agricultural sector's development. The journey began in 2008 and right now it is on the fourth roadmap for agriculture. So ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था। उसके बाद मैंने हाइलाइट्स लिखे हैं, हाइलाइट्स ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप। हाइलाइट्स में क्या क्या है यहाँ पे? हाइलाइट्स में मैंने पहला लिखा है प्रोसेसिंग फोकस, second is storage focus, third one is expansion focus, increasing farmers income, increasing agricultural production, improved agriculture marketing and also crop diversification. So आप अपने कॉपी को ना काफी अट्रैक्टिव बनाइए, तभी आपके मेंस पे अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू enhance crop yields and overall agricultural production. The ambitious plan covers the period from 2023 to 2028. It comes with an investment of 1.62 lakhs crore. तो आप कुछ कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं। उसके बाद ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें, मेन पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने पॉइंट जो लिखा है, इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम इन नेक्स्ट 5 years. The plan seeks to raise the income of farmers and improve economic stability. It also regards for expanding areas of cultivation, particularly in terms of seed production and irrigation. नेक्स्ट पॉइंट मैंने बस लिख दिया है और टीचर ने मुझे बोला है कि अवॉइड दिस वर्ड बिकॉज मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया होगा। सो अब हम इसका एक कंक्लूजन भी लिखेंगे क्योंकि 7 मार्कर है, लेकिन वी हैव टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स लाइक द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि इन प्रीवियस रोड मैप्स also crop productivity and other key sectors have witnessed improvements. The crops such as paddy, wheat, maize nearly doubled in their yields. Beyond grains, milk, eggs and meat production was also improved. So इस कंक्लूजन पे टीचर ने मुझे एक्सीलेंट लिखा है, तो मुझे 7 में 3.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, briefly discuss about the main minerals found in बिहार। तो ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का है और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एल नीनो एंड ला नीनो पे है। और यहाँ पे 3 जो क्वेश्चंस है वो 8 मार्क्स के हैं और 2 7 मार्क्स के क्वेश्चंस है, which you can see here, and the E question was for organic farming. So पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है और पहला आंसर भी देख लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो मिनरल्स के बारे में बात करनी है हमें। सो मैंने स्टार्ट किया है, द मिनरल्स आर वाइटल रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। The present state of Bihar contains minor minerals like soil, sand, and stone. It has also major minerals like granite, bauxite, quartzite, pyrite, mica, and limestone. उसके बाद मैंने ये एक बिहार का मैप बनाया है। टीचर ने मुझे लिखा है नेम देम, जो भी जगह का नाम उसे मुझे मेंशन करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है। सो आप इससे एक सीख ले सकते हो कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है।
तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन में, the above map of Bihar shows various minerals found in Bihar. There is also possibility of petroleum reserves to be located in district of West Champaran, Purnia, Saharsa and Supar. Though a very little amount of minerals are available in Bihar, the revenue collected from it increased from 971 crore to 994 crore in 2016-17 from 2015-16. So Bihar is the principal holder of country's pyrite resources and also it is of 94% of resources. So the important areas are Rajmahal coalfield, limestone in Kaimur, mica in Nevada, silica in Bhagalpur, quartzite in Lakhisarai, talc in Munger and gold in Jamui as it is very famous. And also ये prelims में भी आ चुका है कि gold के बारे में. So we can understand कैसे 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 लिखना है यहाँ पे हमें. और इसमें टीचर ने मुझे 4 मार्क्स दिया है आउट ऑफ 8. और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, सी मुझे शायद नहीं आता था. और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने डील किया था वो टूरिज्म पे था. ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन था. सो tourism is the act of traveling away from the home for recreation, relaxation and pleasure. Tourism actively includes adventure tourism, cultural tourism, ecotourism, medical tourism and business tourism. तो बिहार जो है हमारा स्टेट है, काफी प्रॉस्परस स्टेट है. यहाँ पे हर तरह के टूरिज्म मिलते हैं, लाइक नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, हिस्टोरिकल साइट्स, रिलीजियस सर्किट्स. सो रिलीजियस सर्किट्स जो अभी काफी फेमस हो रहे हैं, जैसे लाइक बुद्धिज्म के, जैनिज्म के. तो यहाँ पे मैंने एक बिहार का मैप बना के थोड़ा हाईलाइट कर दिया बोध गया को. और उसके बाद फिर आप बाकी डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल साइट्स में क्या क्या है बिहार में, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है यहाँ पे. तो एफर्ट्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट भी मैंने ऐड किया है, क्योंकि आपको एक वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए. तो टीचर ने मुझे यहाँ पे एप्रिसिएबल वर्ड्स लिखा है. तो यहाँ भी मुझे 4 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 8. यहाँ पे शायद टाइम कम था क्योंकि मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी. तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में भी डिटेल्स में लिखा है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो मुझे इंट्रोडक्शन में 1 मार्क्स मिले हैं. टीचर ने मुझे लिखा है कि व्हाई वी नीड दिस. यहाँ पे मुझे पॉइंट 2 लिखना था, बेनिफिट्स यहाँ पे लिखना था. तो मुझे पॉलिसीज वगैरह लिखने थे लेकिन मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो शायद 3 मार्क्स मुझे मिले हैं इसमें. अब देखते हैं कि मैंने 38 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कैसे लिखे हैं. तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए, जो आई कैची हो. ठीक है, उसके बाद फिर आप थोड़ा कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक कोट्स लिख सकते हैं या पाई चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आपका आंसर काफी अच्छा हो. जैसे कि मैंने मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो मैंने इसे पॉइंट्स वाइज ही लिखा है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, टाइप ऑफ फूड, environmental factors, safety of food, infrastructure, demographic shifts. तो ये फैक्टर्स क्या-क्या हैं, ये सब मैंने लिखा है. फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इस क्वेश्चन को. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी एंड आल्सो द ऑब्स्टेकल्स इन द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. सो ऑब्स्टेकल्स क्या-क्या हैं इंडिया में? स्मॉल साइज कंपनीज हैं, लैक ऑफ गुड लेबर लेबोरेटरीज हैं, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स. सो इंडिया लैक, ये सब जो लैकिंग है वो सब लिखना है. और मुझे टीचर ने कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करने बोला था, तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे. तो इसमें मुझे 20.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 38, जो कि काफी कम है, लेकिन आप सीख सकते हो, आपको सीखने के लिए काफी मिलेगा मेरे आंसर से. और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो मॉनसून पे था. तो यहाँ पे मैंने द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम व्हिच मींस सीजन. Originally, it was used by Arab navigators several centuries ago. The climate of India is essentially monsoonal. तो मैंने यहाँ पे एक क्लाउड बना के फिर बताया है कि अपर एयर सर्कुलेशन सब क्या-क्या हो सकते हैं जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो इंडियन मानसून के हैं. तो आईओडी है,
डिफरेंशियल हीटिंग, एल नीनो, आईटीसीजेड, तिबेटन प्लेट्यू। तो डिफरेंशियल हीटिंग को थोड़ा डिफाइन कर दिया मैंने। उसके बाद एल नीनो, ला नीनो को डिफाइन किया है। फिर आईटीसीजेड के बारे में मैंने लिखा है, और एक मैंने थोड़ा सा मैप भी बना दिया इंडिया का, और डायरेक्शन बता दिए कि आईटीसीजेड कैसे आते हैं इंडिया में। मैकेनिज्म क्या है इंडियन मानसून का, थर्मल है, डायनेमिक है, जेट थियरी है। तो यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया है, इसलिए टीचर ने मुझे लिखा है नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो मैंने 2-3 लाइन में मुझे ये करना था, लेकिन मैंने काफ़ी लंबा बना दिया है इसको। फिर मैंने फीचर्स भी इंडियन मॉनसून के लिखे हैं, सीज़नल रेनफॉल, 2 मेन फेजेज़ जो होते हैं, साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड मॉनसून। तो ये थोड़ा डिफाइन मैंने किया है, लेकिन मुझे 16 मार्क्स ही मिल पाए हैं क्योंकि मैंने मेन पॉइंट्स को हाइलाइट शायद नहीं किया था। सो ये था मेरा एक सैंपल नोटबुक, नोट कॉपी, जो भी आप बोलो। तो लाइकवाइज अगर आपको और भी देखने हैं ऐसे, तो यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड आल्सो यू कैन आस्क फॉर मोर टेस्ट्स व्हिच आई विल शो यू। एंड आल्सो मैं आपको 67 के अपने मेंस के जो कॉपी वो दिखा दूंगी, कैसे मुझे कितने कितने मार्क्स मिले थे। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग साक्षी नॉलेज हब।